us start today's session with a very quick recap of what we have seen in the last session. पिछले सेशन में हमने सिर्फ मैकेनिकल वेव्स को डिफाइन किया था, a disturbance in an elastic medium in which particles of the medium perform simple harmonic motion about their mean position was called as mechanical wave. Then we saw basic properties of mechanical waves, जैसे कि amplitude क्या होता है, maximum displacement of the particle from the mean position. Then we saw what is time period of a wave, the time taken by the particle of the medium to complete one oscillation is called as time period. Then we saw what is frequency, the number of oscillations performed by the particle of the medium per second. Yeah, so reciprocal of time period is frequency. Then we saw also, you can say, number of waves passing through a point in the medium का एक point ले लिया, कितने waves उस point में से per second cross होते हैं, that is nothing but frequency. Then we saw what is phase of a wave. Velocity, ठीक है, velocity is the distance traveled by a wave in 1 second. या तो फिर आप बोल सकते हो, you know, distance traveled by wave in one time period is lambda, one wavelength. तो distance upon time मतलब lambda by time period is velocity v equal to n lambda. और एक था important thing, wavelength is nothing but the distance between the two particles of the medium which are in same phase, मतलब they are in same state of vibration. Then we defined what is simple harmonic progressive wave. तो simple harmonic progressive wave हमने सिर्फ define किया था. We are yet to make equation for this. तो simple harmonic progressive wave क्या होता है? पहले to understand what is simple harmonic progressive wave, you should know what is a progressive wave. So I told you progressive wave is a wave which continuously travels in a given direction in a given medium. हमारे पास एक मीडियम है, एग्जाम्पल एक रस्सी है, आपने इस रस्सी को एनर्जी सपोर्ट पे लगा दिया, इसको जंप दे दिया, तो द वेव इज कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग along this direction in the same medium. So a wave which continuously travels in a given direction in a given medium is called as progressive wave. Or we have also noted down, we'll write it down again, no problem. A wave which continuously travels in a given direction in a given medium is known as progressive wave. सिंपल हार्मोनिक अभी तक हमने बोला नहीं, क्योंकि अब हम बोलेंगे ये एक वेव है जो प्रोग्रेसिव है, ये कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस हो रहा है, कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रहा है एक गिवन मीडियम में. एडिशनली इफ the particles of the medium perform vibration about mean position, मतलब the particles of the medium perform simple harmonic motion about the mean position, then this wave will also be progressive and the particles are also performing simple harmonic motion, then the wave will be called as simple harmonic progressive wave. So if the particles of the medium of progressive wave performs periodic vibrations, मतलब they perform simple harmonic motion, then the wave is said to be क्या बोलोगे? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. ये याद रखना, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल्स परफॉर्म कर रहे हैं वेव के,
So which means कि जो प्रॉपर्टीज SHM के हैं वही प्रॉपर्टीज इस वेव के भी होंगे, राइट? तो हम बाद में देखेंगे प्रॉपर्टीज. टुडे वी विल सी इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. नाउ लेट अस टेक अ वेव. इस केस में हमारे पास एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, और इस रस्सी पे हमने एक वेव जनरेट कर दिया. ओनली थिंग यू हैव टू बी केयरफुल इज यहाँ पे x इज नॉट डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, हियर x इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. तो वेव इज गोइंग फॉरवर्ड अलोंग x, बट ये जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है दे आर परफॉर्मिंग वाइब्रेशंस अलोंग y एक्सिस. तो आप SHM में सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप एक पार्टिकल लेते हो एंड द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM along x axis. So you can keep on saying it performs SHM along x axis. Then you keep on saying ये जो particle है it is performing SHM. Then you say x equal to a sin of omega t. अगर particle ने mean से start किया तो या in general plus alpha, right? Good. So remember this. यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाज x, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज y, राइट? अब व्हाट यू कैन से इज यू हैव टू कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल, बताओ, कंसीडर अ वेव, कंसीडर अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव propagating along x-axis, the particles of the medium will vibrate along y-axis of the medium, will perform SHM, मतलब will perform SHM along y-axis. Here we will say x. मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पार्टिकल है जो ओरिजिन पे है. ओरिजिन मतलब जहां से वेव स्टार्ट हुआ, राइट? मुझे कोई और पॉइंट लेना है. मान लो यहाँ पे दूसरा एक पार्टिकल है B पे. अब ये B पे जो पार्टिकल है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है हम वो डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए यूज करेंगे x. So let x be the distance of any particle from the origin. ये याद रखना. यहाँ पे एक तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है along x axis, direction of vibration is along y axis, and x will also be used to denote the distance of some particle with respect to origin of the wave जहां से स्टार्ट हुआ वहां से. अब let us assume, हम अब बोल सकते हैं what we can say is ये जो origin पे जो particle है it is performing SHM starting from mean position. So let the particle at origin start its motion from mean position. Therefore its displacement is given by its instantaneous displacement is given by. Okay, so how will you write down displacement equation? Y equal to a sin omega t. Very good, क्योंकि यहाँ पे particle is starting motion from mean position. अब you see, of course you know what is a. What is a? Amplitude. तो जब आप एक नया इक्वेशन लिखोगे उसमें जो कुछ भी पैरामीटर्स इन्वॉल्व है उसको उसी टाइम पे बताते जाओ. Where a is amplitude of SHM या फिर ऑफ वेव लिखोगे तो भी चलेगा. Okay, that is amplitude of wave, no issues. Omega is angular frequency. Now
हमने अब और एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया एट पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन। याद रखना ये जो व्हाइट स्ट्रेट लाइन है ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मतलब जब आपने वेव जनरेट नहीं किया था, जब डिस्टरबेंस आपने जनरेट नहीं किया, तब पार्टिकल सारे के सारे होंगे अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन। बट व्हेन यू हैव जनरेटेड वेव, तो फॉरगेट अबाउट दिस, it is not here. If it is not here, the particle is not here. The particle, this particle is where? It is, okay, so it is somewhere down. तो वो यहाँ पे कहीं पे होगा, right? तो it is basically on the negative side. तो ये याद रखना, this is important for you to know. So you should know this thing. So the particle at B is basically lagging behind with respect to particle at origin. लीड और लैग हमेशा विद रिस्पेक्ट टू होता है, राइट? तो आप ऐसा नहीं बोल सकते द पार्टिकल एट बी इज लैगिंग बट विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल एट ओरिजिन। पार्टिकल जब ओरिजिन का पार्टिकल जब मीन पे था तब यही पार्टिकल नीचे था, दैट इज व्हाई इट इज लैगिंग। और लैग होगा ही ना, वेव कहां से स्टार्ट हुआ? सिंपल आंसर। तो पहले डिस्टरबेंस कहां पहुंचा? ओरिजिन। हाँ, तो कौन लीड करेगा? ओरिजिन का पार्टिकल लीड करेगा, सिंपल। गुड, देन यू कैन से कंसीडर अनदर पार्टिकल, B at a distance x from the origin, the particle at B lags behind compared to the particle at origin, right? Therefore displacement equation of particle at B is given by, therefore displacement of the particle at B is given by, कैसे लिखोगे? How will you represent this? Y equal to A sin omega t minus delta. तो y equal to A sin omega t minus delta, इक्वेशन नंबर 2। A पहले से ही डिफाइन करके रखा है, ओमेगा करके रखा है, डेल्टा किया है क्या? नहीं। वेयर डेल्टा इज phase difference between the particle at B and the particle at O, mean position, where delta is phase difference between the particle at mean, at origin, sorry, not mean, at origin and the particle at B. We know that. What do we know is, मैंने कल बताया था, phase difference is equal to something into part difference. So we spent around 15 minutes in going through ये phase difference क्या है, ये part difference क्या है, याद है? Do you remember phase difference and part difference? No. So okay, those who don't remember, I will quickly revise, very quickly revise. बाय द वे ध्यान दो, यहाँ पे ये हमको आगे के टॉपिक्स में लगने वाला है इन दिस चैप्टर एज वेल एज इन इंटरफेरेंस, तो यू नीड टू नो दिस। मैंने कल आपको बताया था, एंड आई विल गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल आल्सो सो दैट यू विल रिमेंबर दिस। नाउ इजी है, आई हैव ड्रॉन फ्यू वेव्स हियर, इफ यू रिमेंबर मैंने आपसे पूछा था कि ये एक वेव है और इसके नीचे दूसरा वेव है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स? एंड यू सेड नथिंग, because there is no phase difference, because crest of one wave is overlapping with crest of another, trough and trough is overlapping with one of wave is overlapping with another. तो जब crest trough match होता है तो you say there is no phase difference, there is no part difference here, but actually there is no phase difference। मतलब phase difference या तो 0 है या फिर 2 पाई है या फिर 4 पाई है या फिर 6 पाई है या 8 पाई या 10 पाई, तो 2n पाई।
So there is phase difference of 2n pi in general. Then I told you कि there is another wave. Okay, अब उस केस में सिर्फ इतना ही हो रहा था. You had another wave here. What is the difference between wave number 2 and 3? Crest of one wave matches with trough of other, मतलब there is phase difference of pi. क्यों pi? क्योंकि मैंने बताया था वेव कैसा बनता है. एक सर्कल, टॉप मोस्ट इज क्रेस्ट, बॉटम मोस्ट इज ट्रफ, स्प्लिट इनटू हाफ पार्ट, और जो हाफ पार्ट है उसको शिफ्ट कर दो, मतलब ये आ गया वेव. तो क्रेस्ट और ट्रफ में कितना एंगल है? पाई रेडियंस का. तो जब एक का ट्रफ दूसरे के क्रेस्ट के साथ मैच हो रहा है तो फेज डिफरेंस इज पाई, राइट? एंड देन आई टोल्ड यू, asked you what is the difference between these two waves? Path difference. Have you seen soldiers marching? ऐसा एक रो में जितने भी सोल्जर्स होते हैं सबका लेफ्ट लेग साथ में आगे जाएगा, राइट साथ में आगे जाएगा, लेफ्ट साथ में आगे जाएगा, दैट इज इन फेस. सेम इन फेस, मूविंग टुगेदर. अब मार्चिंग करते वक्त एक ही रो होता है क्या? देयर आर आल्सो अदर, आगे और भी है तो वो भी सेम है, देयर आल्सो मूविंग in phase, but wait a minute, but they are ahead, so there is difference of path. तो path difference भी होता है. और phase difference मतलब difference between two waves in terms of angle. Path difference मतलब difference between two waves in terms of distance covered. यही difference है, that's it. And we will do this in much more detail maybe in next lecture. So for the time being हमको इतना पता होना चाहिए. So you know that phase difference which is delta. अब मुझे phase difference क्यों हटाना है इक्वेशन में से? क्योंकि यहाँ पे phase difference है ना, क्यों हटाना है? हमको phase difference पता है क्या? नहीं, हमको path का difference पता है. What is the difference of path between O and B? तो इसके लिए जो हमको पता है उस टर्म्स में लाना है. तो phase difference is equal to 2 pi by wavelength lambda into path difference. So you know this, and once you know this, you can say therefore delta equal to 2 pi by lambda into x. Equation number 3. ये equation 3 को substitute करोगे equation number 2 में, तो substitute equation number 3 in equation number 2. Therefore you will have y equal to a sine of omega t minus 2 pi by lambda into x, right? So this is the mathematical equation of simple harmonic progressive wave. How do you know it is simple harmonic? Because there is sine. How do you know it is progressive? Because you see it is going ahead with time and distance, so it is progressing also, right? अगर यहाँ पे टाइम मिसिंग होता तो द वेव इज नॉट प्रोग्रेसिंग एट ऑल, राइट? तो यहाँ पे टाइम दिखता है, दैट मीन्स द वेव इज गोइंग फॉरवर्ड विथ टाइम. गुड. देन व्हाट इज ओमेगा? हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. हाँ, लेकिन इट इज 2 pi into linear frequency also. So by the way, I'll start giving equation numbers from here now. अभी कहीं बुक में इसको बोला ही नहीं. This is, they don't say this is equation for simple harmonic progressive wave, but it is equation for simple harmonic progressive wave. Therefore y equal to a sine omega. What is omega? 2 pi n. Okay, 2 pi n, और यहाँ पे आ गया t minus 2 pi by lambda into x. Therefore y equal to a sine, ये दोनों में 2 pi है, fetch it out, दोनों को बाहर निकाल लो, 2 pi को बाहर निकाल लो. ओके, so you will have 2 pi outside nt, but n is 1 upon t minus x by lambda. ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. ऐसे 7 से 8 इक्वेशन बनेंगे ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. ये एक, ये दो. नाउ व्हाट एल्स यू कैन डू इज, अब और एक काम कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो y इक्वल टू a साइन ऑफ 2 pi. अब एक काम करते हैं, इसमें से हम लोग n को भी बाहर निकाल लेते हैं. इक्वेशन से n को बाहर निकाल दिया, n को बाहर निकाले तो क्या बचा? t
2 पाई तो बाहर था ऑलरेडी, x और लैम्बडा था, लेकिन n भी बाहर निकला। n है क्या इस इक्वेशन में? नहीं, तो फिर कहां लिखेंगे? डिनोमिनेटर में x अपॉन n लैम्बडा। नथिंग आई हैव डन, सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 पाई n कॉमन निकाला है, तो पहले टर्म में बचेगा t, दूसरे टर्म में मैंने 2 पाई n कॉमन निकाला, दूसरे टर्म में n था ही नहीं, कॉमन निकाला तो नीचे एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट? तो यू विल हैव x अपॉन n लैम्बडा, बट व्हाट इज n लैम्बडा? v। तो ये आ गया आपके पास y इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई n t माइनस x बाई v, राइट? या फिर आप इसको 2 पाई n को लिख सकते हो ओमेगा, ओमेगा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, बीच में जितने भी इक्वेशन है जिनको नंबर नहीं दिया, ऑल ऑफ दिस इक्वेशंस आर इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। अभी और बाकी है, दिस इज ओनली 3 इक्वेशंस एज ऑफ नाउ। व्हाट इफ आई मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई v here, तो y इक्वल टू a sin ओमेगा vt माइनस x बाय v, ये v को बाहर निकाल लेंगे अब, तो y इक्वल टू a sin ओमेगा बाय v vt माइनस x, राइट? बट वेट अ मिनट, y इक्वल टू a sin ओमेगा is 2 pi n, v is n lambda, n cancel, vt minus x, so you have this as a sin 2 pi by lambda vt minus x, तो ये भी आ गया आपका और एक इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। सो दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। अब इतने सारे फॉर्म्स की जरूरत क्यों है? क्योंकि एग्जाम में यूसी अगर आपको ओमेगा, वेवलेंथ और x दिया है तो ये इक्वेशन यूज करोगे, आपको फ्रीक्वेंसी दिया है तो ये करोगे, टाइम पीरियड दिया है तो ये इक्वेशन यूज करोगे, आपको अगर वेलोसिटी दिया है तो ये यूज करना है, सिंपल। अगर आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दिया है तो ये यूज करना है। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू यूज दिस इक्वेशंस। सो ऑल दिस इक्वेशंस आर इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। देयर आर फ्यू मोर फॉर्म्स, एक दो और है, कुछ नहीं है, v इक्वल टू एन लैम्बडा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, n इक्वल टू 1 बाई t, ये बस सब्स्टिट्यूट करते रहना है and you will get different forms of equation, same equation. So if something is left, I'll put it in the notes. 6 से 7 इक्वेशन बनेंगे, राइट? तो जस्ट अ क्विक रिकैप, हमने, हमारे पास एक वेव था, कौन सा वेव था? प्रोग्रेसिव वेव था। उस प्रोग्रेसिव वेव के पार्टिकल्स क्या कर रहे थे? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे थे, तो ऐसे वेव को हमने बोला सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। अब हमको करना क्या था कि हमको सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का मैथमेटिकल फॉर्म चाहिए, राइट? तो मैथमेटिकल फॉर्म के लिए हमने क्या किया, हमने एक पार्टिकल ले लिया जो ओरिजिन पे है और एक पार्टिकल ले लिया जो x डिस्टेंस पे है, राइट? तो पार्टिकल एट ओरिजिन स्टार्ट फ्रॉम मीन, और वेव भी कहां से स्टार्ट हुआ? ओरिजिन से। तो डेफिनेटली जो b पॉइंट पे पार्टिकल है इट इज लैगिंग बिहाइंड, क्योंकि पहले वेव कहां पहुंचा? O पे, तो डेफिनेटली इट इज लीडिंग एंड ऑल अदर पॉइंट्स आर लैगिंग। गुड, so we have some particle at B which is lagging behind as compared to particle at O. Particle at O starts from mean position, hence you can write y equal to a sin omega t, where a is the amplitude of SHM and omega being angular frequency. फिर आपने बोला कि जो B पार्टिकल था वो लैग हो रहा था, तो दैट इज व्हाई देयर इज डिफरेंस ऑफ फेज माइनस डेल्टा। देन यू सेड फेज डिफरेंस इज रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस लाइक दिस, क्योंकि हमको इन रियलिटी पता क्या है? पाथ डिफरेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। तो डेल्टा इज 2 पाई x बाय लैम्बडा, सब्स्टिट्यूट करोगे, देन यू पुट ओमेगा इज 2 पाई n एंड देन टेक आउट 2 पाई कॉमन, देन n इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, देन ऑफ कोर्स यहां से आपने इसी इक्वेशन में से n भी कॉमन निकाल लिया, तो t माइनस x बाय n लैम्बडा, बट n लैम्बडा इज v, so इक्वेशन नंबर 3 मिल गया in terms of omega x and v. Then you have another forms of simple harmonic progressive wave. So equations 1 to 4 represent
simple harmonic progressive wave traveling in which direction? Along positive x direction. Positive x direction. Similarly, we will have a simple harmonic progressive wave traveling along the negative x-axis is given by traveling along negative x-axis is given by. मैं एक ही इक्वेशन लिखूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑल दिस. मैं ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दूंगा वहां पे. तो y इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई साइन 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल T प्लस जब पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेव जा रहा है तो यहाँ नेगेटिव है. जब नेगेटिव x डायरेक्शन में वेव जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा प्लस x बाय लैम्डा. हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, होना भी चाहिए, लेकिन क्यों ऐसा? देखो यहाँ पे वेव स्टार्ट हुआ था ओरिजिन से और वेव जाएगा पॉजिटिव x में, तो ओरिजिन पे जो पार्टिकल है उसको छोड़ के बाकी जितने भी पार्टिकल है दे आर लैगिंग बिहाइंड. हाउ डू यू नो दे आर लैगिंग बिहाइंड? सिंपल, वेव यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ तो सबसे पहला पार्टिकल जो मोशन में आएगा वो ओरिजिन वाला आएगा. उसके बाद का कोई भी पार्टिकल हो वहां पे वेव बाद में पहुंचेगा. जब तक ये पार्टिकल आगे चले गया होगा वो अभी भी ओरिजिन मेन पोजीशन पे ही है. राइट, गुड. अब इमेजिन द अदर वे राउंड. यू हैव टू imagine that there is no issues, that there is another wave which is traveling in the negative x direction. तो imagine करो हमारे पास और एक वेव है. Let us take something like this. Okay, अब यहाँ पे जो वेव है, in this case the wave is traveling along negative x. यहां तक लेता हूं मैं. गुड. सो आई जस्ट नॉट टेक दिस पार्ट. अब सबसे पहले वेव कहीं पहुंचेगा तो पहुंचेगा ओरिजिन पे. राइट, करेक्ट. नाउ यू हैव टू थिंक बाकी पार्टिकल्स के साथ क्या हो रहा है. हु इज लीडिंग, हु इज लैगिंग. तो व्हेन यू थिंक यू विल सी दैट हियर यू विल हैव अ पॉजिटिव साइन. तो दैट इज अ स्मॉल असाइनमेंट फॉर यू. तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, जब वेव पॉजिटिव x में ट्रेवल कर रहा है तो बीच का साइन नेगेटिव. जब वेव नेगेटिव x में ट्रेवल कर रहा है तो बीच में साइन पॉजिटिव. दैट्स इट. दिस इज ऑल यू नीड टू नो. देन वी हैव little bit of theoretical background of what is simple harmonic progressive wave. We know how to represent simple harmonic progressive wave traveling along positive x and traveling along negative x in the form of equation. Let us look at some properties of simple harmonic progressive waves. Properties of simple harmonic progressive waves. Harmonic progressive wave. और ऐसा थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में. तो यू नीड टू नो नंबर 1. सो व्हाट डू यू नो? देयर आर सम 8 to 10 प्रॉपर्टीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग. है अराउंड 8 से 10 कुछ प्रॉपर्टीज होंगे. तो फ्रॉम वेयर विल यू स्टार्ट? बाय द वे देयर आर 8, 9 and 10, सम 10 प्रॉपर्टीज. सो फ्रॉम वेयर विल यू स्टार्ट? सबसे पहले तो इसको सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्यों बोला? बिकॉज ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सबसे पहले ये when progressive wave passes through a medium, progressive wave passes through a medium
a medium, each particle of the medium performs simple harmonic motion. अब ये पहला पॉइंट इसलिए आना चाहिए क्योंकि द मोमेंट यू से कि पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग एसएचएम, तो एसएचएम के जो सारे प्रॉपर्टीज थे वो सारे के सारे यहाँ पे एप्लीकेबल है. तो डू यू रिमेम्बर प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? हाँ, properties of simple harmonic motion. Yes, there are many. I told you 8 to 10 properties are there. Well, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. If you don't remember, doesn't matter. So, थोड़ा सा imagination आपको रखना पड़ेगा because that is the only thing you will have to do. You will have to first understand theory and then go ahead with explanation. अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आप देखते हो ना, दिस इज अ स्नैपशॉट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द वेव एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. फोटो निकाला, फ्रीज कर दिया. और रियलिटी में ऐसा हो रहा है क्या? रियलिटी में क्या हो रहा है? यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन रियलिटी? इन रियलिटी समथिंग इज लाइक दिस. अब अगर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ओरिजिन का पार्टिकल मीन पे है, दूसरा पार्टिकल कोई होगा जो एक्सट्रीम पे होगा, फिर कोई पार्टिकल मीन पे होगा, फिर कोई पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा, फिर कोई पार्टिकल यहाँ पे होगा. राइट? विच टाइम व्हाट इज हैपनिंग? दिस पार्टिकल विल गो टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट and this will come to mean, this will go to negative maximum, this will go to mean, and then this particle will go to positive. right? तो situation is changing with time. फिर वापस से ये पार्टिकल maybe it is somewhere here. तो ये जो पार्टिकल था पहले था पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, फिर आया मीन पे, फिर कहाँ जाएगा? नेगेटिव साइड पे. ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे था, फिर ये जाएगा वापस ऊपर की तरफ. राइट? मतलब क्या हो रहा है? ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे आर एक्चुअली चेंजिंग देयर लोकेशंस, पोजीशंस, बट वेट अ मिनट, ऑल ऑफ देम हैव सेम एम्पलीट्यूड, है ना? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो मैंने बताया था आपको, इफ यू रिमेंबर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लाइन. इस लाइन के ऊपर इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट में कोई भी पार्टिकल जा नहीं सकता. राइट? सो ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव सेम एम्पलीट्यूड. नंबर 1, दे हैव सेम टाइम पीरियड. अगर टाइम पीरियड सेम नहीं हुआ तो व्हाट विल हैपन? मैंने आपको इसलिए बताया कि यू नीड टू कनेक्ट विद द सब्जेक्ट. अगर टाइम पीरियड सेम नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? अ लॉट ऑफ मेनी पॉसिबिलिटीज. तो व्हाट कैन हैपन? थिंक, अगर हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो अपने मन मर्जी के मालिक है, जैसे आप लोग सुनते नहीं है किसी का. राइट? अब इनका भी ऐसा केस है. आई डोंट से इट पर्सनली, इट इज जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट. So don't worry about it. They follow pattern. So by the way, what happens is, क्या होगा? Think, अगर पीरियड सेम नहीं हुआ तो क्या होगा? ये जो पार्टिकल है ये T/4 के बाद, उसके T/4 के बाद ऊपर पहुंच गया, लेकिन ये जो पार्टिकल है उतने ही टाइम में कहाँ आना चाहिए था? ये पहुंचा ही नहीं मीन पे. इट इज समवेयर इन बिटवीन. या फिर कुछ ज्यादा ही फास्ट था तो इट इज समवेयर हियर, which also means that the particles don't have same frequency because time period is not same. So in that case, simple harmonic wave will not look like this. ऐसा दिखेगा ही नहीं वो. It will look something like, you don't know, random, पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो रहा है. It is something like this if the time period is not same. So amplitude cannot be well defined as well. So कोई पार्टिकल कब कहाँ है you don't know. So that is why. Now पहला प्रॉपर्टी तो आपने बता दिया कि they are performing simple harmonic motion, but you also have to say all these particles perform SHM with same amplitude.
with same period and with same frequency. All these particles performing SHM, performing simple harmonic motion, have, what do they have? Have same period, same amplitude, and same frequency. What else? What else you can say? बताओ और क्या लिख सकते हो? What else? और कौन कौन से प्रॉपर्टी याद है आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के? Properties. What happens at mean position? Velocity is maximum. All these particles will have maximum velocities when they are at their mean position. So all these particles will have maximum velocity, at their mean positions. Yes. What else can you say about simple harmonic motion of the particles? Do they stop somewhere? No. Particle performing SHM velocity कभी जीरो नहीं होता है, एक्सट्रीम पे होता है, हमेशा रेस्ट पे बैठ जाता है क्या वो? That is a momentarily stop. So all the particles या फिर no particle of the medium is permanently at rest. It will come to rest momentarily at extreme positions. So no particle of the medium is at rest permanently, all the particles come to rest momentarily, temporarily, at their respective extreme positions. हर कोई अपने अपने एक्सट्रीम पे जाने के बाद रुक जाएगा at the respective extreme positions. What else? लेकिन वहां पे सिंगल पार्टिकल की बात हो रही थी, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, यहाँ पे पार्टिकल का प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो प्रॉपर्टी पूरे वेव का होगा वही लिख सकते हो. यू कैन नॉट से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. देखो कहीं पे भी देखो, हमने बोला, हम हर जगह पे बोल रहे हैं all the particles, all these particles, single particle doesn't make a wave. Acceleration, तो बात तो सिंगल पार्टिकल की बात हो गई, बोल सकते हो all these particles will have maximum acceleration at their extreme position. ठीक है, okay, that is fine. Then what else? वो भी लिख सकते हो. What else? Simple harmonic progressive wave, or in general any wave, what does it do? कल ही बताया मैंने, it is transport service for energy. So simple harmonic progressive wave transfers only energy from one point to another, and there is no transfer of matter. There is only transfer of energy. So simple harmonic progressive wave transfers only energy from one point to another, and it does not
it does not transverse matter. What else you can say? अभी तो पांच ही हुए, as I told you कि around 10 properties है, so there are few more properties which are remaining. और क्या बोल सकते हो? और कुछ लिखा है उन्होंने, ठीक है, we'll see. Then what else? What else? What else you can say? मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल दिया था. आई टोल्ड यू कि लेक है, उसमें हमने स्टोन ड्रॉप किया तो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, मतलब वेव क्रिएट होगा, और वो जो मीडियम है वो मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, राइट? अब इलास्टिसिटी तो मीडियम की होनी चाहिए, बट हमको प्रॉपर्टीज लिखना है वेव का. ओके, मेरे पास अगर दो मीडियम है, एक मैंने वाटर लिया और मैंने एक वाटर में बहुत सारा शुगर डाल के मिक्स करके सिरप बनाया और दोनों में स्टोन ड्रॉप किया, तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? किस में वेव फास्ट ट्रेवल होगा, किस में वेव स्लो ट्रेवल होगा? वाटर में फास्ट ट्रेवल होगा. मतलब ये दैट द वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी भी बोल सकते हो, बट बेटर इज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम. सो velocity of simple harmonic SHPW, simple harmonic progressive wave, depends on nature of the medium. Then what else you can say? Did I tell you that there are two types of mechanical waves? Which two types? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल. और दोनों में ही, इवन इन ट्रांसवर्स और इन लॉन्गिट्यूडनल, दोनों में वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स आर पॉसिबल. सिर्फ एक में वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और एक में वाइब्रेशंस आर पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. अगर दोनों केसेस में वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स आर इन SHM, तो दोनों के दोनों जाएंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. So progressive waves, simple harmonic progressive waves are of two types. Number one, transverse, and number two, longitudinal. अब आपने यहाँ पे मेंशन कर ही दिया है, तो अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो कि ट्रांसवर्स में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है. इन ट्रांसवर्स simple harmonic progressive wave, the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation of wave. And similarly in longitudinal simple harmonic progressive wave, the particles of the medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation. Okay, then what else you can say? दो टाइप, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल. ट्रांसवर्स में क्या हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन एंड डायरेक्शन इज पैरेलल इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. अब यू हैव टू थिंक, ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये सारे के सारे मीडियम में जा सकता है क्या? कैन इट गो इन ऑल द मीडियम्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? लिक्विड और गैस को यहाँ पे हम फ्लूइड्स बोलते हैं बाय द वे. सो बोथ, कौन से बोथ? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल सिंपल हार्मोनिक वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड्स, बट थ्रू फ्लूइड्स only longitudinal simple harmonic progressive waves can
propagate. So both transverse and I'm sorry for this, transverse, both transverse and longitudinal simple harmonic progressive waves can propagate through solids, but only longitudinal simple harmonic progressive wave can travel through fluids, और इसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी का. यू नो टाइटैनिक देखा है? टाइटैनिक, उसमें एक सीन है जहां पे वो शिप, वो आइस जो भी था, आई डोंट नो, आइस स्टोन बोलते हो, आई डोंट नो, व्हाटएवर इट इज, बहुत पास में आने के बाद इंडिकेटर देखता है. तो हाउ डू दे नो? रात में इतने अंधेरे में, वो भी इतने बड़े ओशन में, वहां पे दूर एक ऑब्जेक्ट है, हाउ डू दे नो? हाउ डू दे नो? वो शिप के नीचे पानी के अंदर you have a source of ultrasonic sound. Ultrasonic sound मतलब sound waves. What sound waves? ये they generate vibration, and these vibrations they travel through fluid मतलब water in the form of wave. फिर ये wave जाएगा और हमको पता होता है what is the speed of that wave in water. फिर वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, राइट? You know velocity? Yes. You know time also, क्योंकि हमने जनरेट किया तो जाके वापस आने में टाइम लगा, तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं यूजिंग सम डिटेक्टर्स. तो you know velocity, you know time. What you can find is distance, right? So this is how you know कि कितना दूर है वो. Then you have to take a timely decision and change the direction of the motion. Otherwise momentum change कर नहीं देगा नहीं direction. That is what happened with Titanic. इतना पास में आ गए कि अब sudden change of direction is not possible. Q, momentum depends on mass into velocity. Heavier the object, more is the momentum, more is the trouble to bring in change in the direction. इसलिए बोलते हैं, ट्रक वाले जो होते हैं ना, वो बोलते हैं हमको ओवरटेक नहीं करना. Why? Because they are telling you physics. अरे मोमेंटम ब्रेक करने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो उनके लिए ब्रेकिंग इतना इजी नहीं है जितना आपका है. ब्रेक मारा रुक गया, वैसा नहीं होता है वहां पे. Good. Then somewhere else you use this. You use this at many places. और कहाँ यूज करते हो? हाँ? नो, गाड़ी के रिवर्स सेंसर में ये नहीं होता है. अल्ट्रासाउंड, साउंड वहां पे हार्मोनिक वेव्स का कोई यूज नहीं है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का कोई यूज नहीं है वहां पे. Whereas to detect cracks, हमारे पास एक आयन का ब्लॉक है, अंदर क्रैक है, वो पता करना है, तो उसको क्रैक करो, फिर देखो अंदर क्रैक है. तो क्या करोगे? You have to send. So what you can do is, I'll draw a diagram here. So you have to send ultrasound, मतलब sound waves, because you know transverse waves can travel through solids. So what you do is, imagine you have a block of metal. मुझे एरोप्लेन में एक पार्ट लगने वाला था, मैंने बना दिया, और अगर इसमें क्रैक रह गया तो गए. एक छोटा सा भी डिफेक्ट कैन लीड टू एयर क्रैश. तो व्हाट विल यू डू? अब इसको तोड़ तो नहीं सकते ना, तोड़ूंगा तो पूरा क्रैक ही हो जाएगा. तो हाउ डू यू डिटेक्ट? यू पुट सोर्स ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और जहां पे सोर्स है वहीं पे डिटेक्टर भी लगाया होता है. So you also have a detector. तो यहां से जनरेट हो रहा है, राइट? अब इमेजिन यहां पे क्रैक है, बाकी जगह पे क्रैक नहीं है, तो क्या होगा? यहां से साउंड निकलेगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, ज्यादा टाइम लगने वाला. बट अगर क्रैक है तो वो क्रैक की बाउंड्री से ही रिफ्लेक्ट होके जाएगा, तो हियर द सिग्नल इज रीचिंग बैक फास्टर. तो यू नो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. नहीं तो यूनिफॉर्मली हर एक जगह से इट शुड रीच एट द सेम टाइम, राइट?
Good. There is one more thing, one more place, medical application, sonography. You send sound waves inside. Okay. So this is the use of simple harmonic waves in engineering as well as in medical sciences. So that's it for today. We'll continue with more in the next session.